ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕು, ಅಂಕವಾರು, ವಿಷಯವಾರು, ನಂತರ ಪಾಠವಾರು ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಘಟಕವಾರು ಒಂದು ಸರಳವಾಗಿ, ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ವಿಷಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರಾದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮುಕುಂದಿಯವರು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಕಾಳಜಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲಕರವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಕರೆಸಿ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಆದಂತಹ RS ಮುಳ್ಳೂರ್ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಕಾಳಜಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ SSLC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮವಾಗಬೇಕು, ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಅವರು ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಷಯವಾರು ಶಿಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಅಂಕ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲವಾಗ್ತದೆ. ಇದರ ಲಾಭವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳಿದಂತಹ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಚಾಚೂ ತಪ್ಪದೆ ಪಾಲಿಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ ತಾವು ಅಂಕ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಅನುಸಾರ ತಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳಿದಂತಹ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಯ ಬೇಡ. ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿದರೆ ತಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಅಂಕ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಫಲಿತಾಂಶದ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಲೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವೂ ಕೂಡ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೀಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಆಶಿಸ್ತಾ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರ. तो आइए इस नशिश में हम ये देखेंगे कि साइंस का पर्चा किस तरह से डिजाइन होता है यानी तैयार होता है। तो साइंस मजमून का सवाली पर्चा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सवालात के अक़साम, सवालात की तादाद और मार्क्स, सवालात के नंबरान। इसमें सबसे पहला मुतबादिल इंतखाबी सवालात यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 10 सवालात रहेंगे। हर सवाल के लिए 1 मार्क्स रहेगा, कुल 10 मार्क्स। तो इस तरह 1 से 10 तक के सवालात आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे। उसके बाद आते हैं जोड़ियां, मैच द फॉलोइंग। ये कुल 4 सवालात रहेंगे, हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स। इसी तरह से कुल मार्क्स 4 रहेंगे। सवाल नंबर 11 होगा 1 मार्क्स के सवालात, जिनको हम शॉर्ट आंसर टाइप कहते हैं। 1 मार्क्स के सवालात रहेंगे, कुल टोटल 7 रहेंगे, 1 मार्क्स, टोटल मार्क्स 7। इस तरह से 12 था 18, ये 1 मार्क्स के सवालात आपको नजर आएंगे साइंस पेपर में। 2 मार्क्स के जो हैं कुल 16 क्वेश्चंस रहेंगे, सवालात 16 रहेंगे। 2 मार्क्स का हर एक सवाल रहेगा। इस तरह से 32 मार्क्स से रिजल्ट हैं। सवाल नंबर 19 तक 34, ये 2 मार्क्स के लिए रिजल्ट हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो या के कुल 5 हैं, यानी ये जो सवालात पूछे जा रहे हैं 16, इसमें चंद 5 ऐसे सवालात रहेंगे जिसमें या का इस्तेमाल होगा। मतलब ये एक सवाल होगा, उसके बाद अगर वो आपको नहीं आता है तो वहाँ पे या करके और एक सवाल दिया जाएगा, उसी का नंबर तो वही रहेगा, नंबर चेंज नहीं होगा। तो आपको वो लिखना है या नीचे वाला लिखना है, दोनों नहीं लिखना है, इतना आप ध्यान में रखें। इसी तरह से 3 मार्क्स के सवालात 5 रहेंगे, कुल मार्क्स 15 होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 35 to 39 तक रहेगा। इसमें या के सवालात कुल 2 रहेंगे। 4 मार्क्स के लिए कुल 3 सवालात रहेंगे, टोटल मार्क्स होंगे 12। सवाल नंबर 40 था 42 या 42 के हैं। तो यहाँ पे एक
या का सवाल होगा। इसके अलावा जब मैंने जूलिया का यहाँ पे जिक्र किया तो आपको याद होना चाहिए ये 4 था 7 की निस्बत में रहते हैं, मतलब फहरिस्त ए फहरिस्त बी। फहरिस्त ए में 4 रहेंगे, उसके मुतबादिल जवाब आपको फहरिस्त बी में 7 मिलेंगे। उसमें जो सही है वही आपको चुनकर लिखना है। इसे कैसे लिखना है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो नेक्स्ट जो है, अब हम देखेंगे मुख्तलिफ सवालात के जवाब कैसे लिखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं मुतबादिल इंतखाबी सवालात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से, जिसमें ये सवालात तालिब इल्म की मखसूस सलाहियतों और दानिशमंद यानी सूझबूझ का पता लगाने में मदद करते हैं। ऐसे सवालात को बगैर पढ़कर समझकर के बाद ही जवाब लिखना या निशानदही करना चाहिए। इसमें किसी तरह की अंदाज नवीसी या कोई गलती या कोई गलत तरीका इख्तियार नहीं करना चाहिए। अजीज तलबा और तालिबात, अक्सर आप लोग यहाँ पे लॉटरी सिस्टम खेलते हो, जो दिलबाएं आप मार्क कर देते हो, या जवाब आता है तो उसका सिर्फ हुर्फ तहजी लिखते हो, पूरा जवाब नहीं लिखते, या जवाब लिखते हो तो हुर्फ तहजी छोड़ देते हो। ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए। मैं इसीलिए आगे फिर मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे जवाब कैसे लिखे जाएं। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि मुख्तसरन जवाबी सवालात, जिसे हम 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के सवालात भी कहते हैं, उनको कैसे लिखते हैं। ये सवालात तालिब इल्म की याददाश्त और मुख्तसरन अंदाज में जवाब के इजहार को पेश करने की सलाहियत में मदद करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि जवाब लंबा ना हो, बल्कि जितना जरूरी है उतना ही लिखें। इसके बाद आता है तफसीली जवाब, लॉन्ग आंसर टाइप, जो कि 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के होते हैं। इसमें ये सवाल तालिब इल्म ने के मौजू को किस तरह से या मवाद को किस तरह से उसने पढ़ा है, समझा है, इसकी जांच यहाँ पर होती है। तो इसलिए यहाँ पे जहानत को भी चेक किया जाता है। इसलिए इसको ऐसे सवालों को हल करते वक्त अपना ध्यान पूरी तरह से वहीं पे रखना चाहिए। अब आइए हम देखते हैं जवाबी पर्चा लिखते वक्त 3 बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो आप यहाँ देखते हैं, सबसे पहले सवाली पर्चे को बार-बार पढ़ना चाहिए और आसान सवालात को पेंसिल से निशानदही कर लेने। जो आपको आसान लगते हैं तो उनको क्या कीजिए, आप पेंसिल से मार्क कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है, जवाब लिखने से पहले सवाल नंबर लिखें। अजीज तलबा तालिबात, आपकी एक आदत बन चुकी है, आप सवाल को भी लिख देते हो, तो सवाल को न लिखें, सिर्फ सवाल का नंबर लिखें, उसके बाद उसका जवाब लिखें। फिर जवाब को सही अंदाज और मौजू औकाफ यानी पंक्चुएशन वगैरह का इस्तेमाल करना है, कॉमा कहाँ पे लगाना है वगैरह, इसका इस्तेमाल करेंगे आप। जवाब को अहम नकात की सूरत में लिखें। जवाब की लंबाई साइंस में कोई अहमियत नहीं रखती। तो तलबा तालिबात, आपको ये ध्यान रखना चाहिए, ये लैंग्वेज के पेपर्स नहीं है, ये साइंस का पेपर है। इसमें सिर्फ अहम नकात के जरिए ही आपको जवाब लिखना है। इसमें आपका नकात देके जाते हैं, ना कि आप आधा पेज लिखे हो या पूरा पेज लिखे हो। तो इस बात का ध्यान रखें। खुशखती और सफाई का खास ख्याल रखें। खुशखती आपका तरीक़ा इजहार को जाहिर करती है, जिसकी वजह से जो चेक करते हैं एग्जामिनर वो खुश होकर आपको पूरे मार्क्स देते हैं। अगर आपकी खुशखती सफाई का ध्यान ना रखें या हैंड राइटिंग खराब ही, तो आपके मार्क्स कटने के भी पूरे चांसेस रहते हैं। तो इस गलती को न दोहराएं। आखिर में जो है व्हाइटनर का इस्तेमाल ना करें। अजीज तलबा और तालिबात, आजकल मैंने कई एग्जाम्स में देखा है, बच्चे व्हाइटनर लगा देते हैं। गलत जवाब लिखे, व्हाइटनर लगा दिए, फिर उसके बाद जवाब लिख दिए। अगर ऐसा किए तो महकमा तालीम की तरफ से हमें जो इंस्ट्रक्शंस है, ऐसे जवाब को मार्क्स न दिए जाएं। तो बराए मेहरबानी आइंदा आप किसी भी एग्जाम में व्हाइटनर का इस्तेमाल न करें। अब मैं आपको वो अहम अशकाल दिखाने जा रहा हूं जो साइंस के केमिस्ट्री हिस्से इल्म कीमिया के लिए बहुत अहमियत रखते हैं। इसमें कुल 7 ऐसे डायग्राम्स अशकाल हैं जो बहुत अहमियत रखते हैं। जैसा कि पानी की बर्फपाशीदगी, ये इसका डायग्राम है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। दूसरा है पानी का तेजाब में बिजली का एहसास, तो ये डायग्राम उसका रहा। तीसरा है नमक महलूल की एसालियत की जांच।
चौथा है कॉपर की बर्फपाशीदी तखलीस यानी इलेक्ट्रोलाइटिक तरीका भी कहते हैं इसे। धात पर भाप का अमल, ये इसकी शक्ल है। जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक तुषार यानी हाइड्रोजन गैस की जांच। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गैस को जब मोमबत्ती के जरिए से जलाया जा रहा है तो पॉप की आवाज आती है, तो इसकी आप जांच करेंगे। बायोगैस प्लांट, तो ये आप यहाँ पे देख रहे हो, ये बायोगैस प्लांट की शक्ल आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। अब आइए मैं आपको बताता हूँ इल्म कीमिया में कितने चैप्टर हैं, कौन से हैं और ये मार्क्स कितना वेटेज रखते हैं। तो यहाँ पे देखें, पहला चैप्टर कीमियाई तामुलात और मसावतें, जिसके 4 मार्क्स हैं। तेजाब, असास और नमक, जिसके लिए 6 मार्क्स रिजर्व हैं। धातें और गैर धातें, जिसके लिए 6 मार्क्स रिजर्व हैं। कार्बन और इसके मरकबात 6 मार्क्स रिजर्व हैं। अनासिर की दौरी दर्जाबंदी 3 मार्क्स, टोटल मार्क्स 25। तो इस तरह से इल्म कीमिया के लिए 25 मार्क्स यहाँ पे रिजर्व हैं। अब हम देखेंगे कीमियाई तामुलात और मसावित, जो पहला चैप्टर है इल्म कीमिया का, इसके सवालात और जवाबात कैसे लिखें। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे मंदरजे सवालात के 4 मुतबादिल दिए गए हैं। मुनासिब मुतबादिल को चुनकर हुर्फ़े तहजीब के साथ लिखे गए। जैसा कि आपको सवाली पर्चे में पहले क्वेश्चन से ही मिलेंगे, तो टाइटल भी यही रहेगा। तो इसे कैसे पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और कैसे लिखना चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ। कॉपर सल्फेट के खिलमी ज़रात को पानी में डालने से हमें मंदरजेल रंग का महलूल हासिल होता है। तो बच्चों, आपको मालूम होगा कि कॉपर सल्फेट के जो खिलमी ज़रात होते हैं वो नीले रंग के होते हैं। तो जब वो पानी में डाले जाएंगे तो बहरहाल हमें कौन सा कलर हासिल होगा? नीला ही हासिल होगा। तो इसलिए इसका जवाब होगा सी। इसी तरह से दूसरा सवाल देखें, इथामीन अली में लिए गए जिंक के टुकड़ों पर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक तुषार डालने पर क्या होता है? अब आपको यहाँ पे ऑप्शन पढ़ना है, कोई तब्दीली नहीं होती। महलूल के रंग जर्द हो जाता है, ऑक्सीजन गैस खारिज होती है, जिंक की सतह पर हाइड्रोजन गैस के बुलबुले नजर आते हैं। यही बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, क्योंकि जब जिंक के ज़रात पर हाइड्रोक्लोरिक तुषार डाला जाता है तो वहाँ पे कीमियाई तामुल लेते हुए जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस खारिज होती है। तो ये जिंक के बुलबुले जो उसकी सतह पे नजर आते हैं, यही इसका सही जवाब है। फिर आए देखेंगे नंबर 3, अकमल चूने के पत्थर को गर्म करता है, ये तामुल। तो अकमल क्या कर रहा है? चूने का पत्थर लेता है, उसे गर्म करता है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि एक ही चीज शय ले रहा है बच्चा। अकमल क्या कर रहा है? एक ही शय ले रहा है, और वो क्या है? चूने का पत्थर, जो कैल्शियम कार्बोनेट कहलाता है। जब इसको गर्म करते हैं तो ये हरारत की वजह से टूटने लगता है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड में तब्दील होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है। तो इस तरह से हमें पता चला कि मुतामिल एक है, हासिल 2 है, यानी मुहासिल 2 हैं। तो इस तरह से हमें पता चला कि ये कौन सा केमिकल रिएक्शन है, यानी इत्तेहादी तामुल है, तहलीली है, हटाव है या दौरा है। तो हमें पता चल रहा है ये कि शय 2 हिस्सों में तकसीम हो रही है, तो ये तहलीली तामुल हुआ। तो तलबा आप ये ध्यान रखें कि सवाल पढ़ते ही कोई भी जवाब जल्दबाजी में ना लिखें, बल्कि उसे समझें, थोड़ा सा वक्त लें, समझ बूझ के ही लिखें। फिर आइए देखें बूझे चूने का कीमियाई फार्मूला क्या है। बूझा चूना या मतलब क्या? जो चूने का पत्थर लाया गया है, अकमल जो लाया था ना यहाँ पे, अगर उसमें हम पानी डाल देंगे तो कीमियाई तामुल होने के बाद हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, जिसको हम बुझा हुआ चूना कहते हैं। ये बुझा हुआ इसलिए है क्योंकि पानी की शक्ल में रहता है। अगर इसी को हम दीवार पे लगा दें तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है, उसका पानी जो है भाप बुखारत में तब्दील हो जाता है और हमें सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट ही वापस मिल जाएगा। इसीलिए हम इसको बुझा हुआ चूना कहते हैं। आइए फिर देखें कि जोड़ियाँ किस तरह से पूछता है। तो मैंने यहाँ पे जोड़ियाँ बनाई हैं। मैं एक बात बता दूं आपको, ये जो सवालात मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये सेंट्रलाइज्ड क्वेश्चंस कहलाते हैं, यानी दरमियानी सवालात।
तलबा और तालिबात ये याद रखें, जो सवालात आपके मश्क में हैं या दरमियानी सवालात हैं, मैंने वो नहीं लिए। तो इसलिए नहीं लिए ताकि आपको एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। तो किस तरह से असातिज़ा कराम पढ़ते हैं मवाद को, किस तरह से सवालात बनाते हैं, वो तरीक़ा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे जोड़िया में आप देख सकते हो, शायद ही आपको ऐसा पैटर्न कहीं और मिला हो या ना हो, मैं नहीं जानता, लेकिन ये मैंने बनाया। तो किस तरह से इसमें ट्रिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं, किस तरह से क्वेश्चन को ट्विस्ट किया जाता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। कीमियाई तामुल में इस्तेमाल होने वाली तभी हालात को फहरिस्त ए और इनकी अलामत को फहरिस्त बी के साथ मुनासिब जोड़ लगाओ। तो यहाँ फहरिस्त ए में जो है यहाँ पे हालात हैं या उनका अलामती इजहार है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, सबसे पहले गैस का खारिज होना, दूसरा है आबी महलूल, तीसरा है हरारत का इस्तेमाल, चौथा है गैस की सूरत। जब भी आप सवालात पढ़ते हो तो दो क्वेश्चन आपको इजी लग रहे हैं, ये वाले क्वेश्चन नंबर 2 और 3, आबी महलूल और हरारत का इस्तेमाल। जबकि पहला और चौथा इसमें आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। कैसे? यहाँ पर भी गैस की सूरत में है या गैस का अखराज है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख लीजिए, A, B, C, D, E, F, G, जो कि कुल 7 हैं। तो मैंने बताया आपको जोड़िया में 4:7 की निस्बत होती है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो जाएगा नंबर 1 और नंबर 2 में। तो ऐसे सवाल होंगे ट्विस्टेड, इसे कैसे सॉल्व करते हैं मैं बता रहा हूँ। चलिए पहले देखेंगे गैस का खारिज होना। इस सवाल पर गौर कीजिए, गैस का खारिज होना मतलब गैस जो है खारिज हो रही है। अब ये सोचना है गैस कहाँ पे खारिज हो रही है, नीचे या ऊपर। अब ये जवाब भी आपको ही तलाश करना है। कैसे? गैस हल्की होती है तो बाज़ाहिर वो ऊपर ही खारिज होगी। तो यहाँ पे आपको उसका तीर का निशान तलाश करना है। कहाँ पर है? यहाँ पर। तो तीर के निशान 2 हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। तो ये वाला जो है सही जवाब रहेगा। तो ई बराबर ये तीर का निशान होगा। अब आइए आबी महलूल। आबी महलूल जो कीमियाई तामुल में जाहिर करते हैं वो है अक्वेस कहलाता है। क्या कहलाता है? अक्वेस, ये वाला। तो आबी महलूल को हम सी यानी अक्वेस से जाहिर करते हैं। अब आइए यहाँ पे हरारत का इस्तेमाल। तो जब आप मुताला कर रहे थे तो कीमियाई तामुलात के लिखने के तरीके में आपको बताया गया है कि हरारत जब इस्तेमाल होती है कि किसी कीमियाई तामुल के दौरान, या तो आप उसे मुसल्लस की निशानी से जाहिर करते हो, कहाँ पर? तीर के निशान के ऊपर या नीचे भी कर सकते हैं, या नहीं तो हरारत लफ्ज़ लिखकर भी जाहिर किया जा सकता है। तो मैंने यहाँ पे मुसल्लस दिया हुआ है, तो इसका सही जवाब होगा ये वाला। अब आओ लास्ट में चौथा, गैस की सूरत में। गैस की सूरत में जब ये जा रहा है मतलब क्या? तबई हालात को जाहिर कर रहे हैं। अब यहाँ पे ट्रिक की सवाल है इसमें से फर्क करने का। गैस की सूरत यानी तबई हालत को जाहिर कर रहा है। तो हम इसे तबई हालत को कैसे करेंगे? ठोस रहा है तो यस, लिक्विड रहा यानी रफीक रहा तो यल, और गैस रहा है तो जी, यानी जी कहाँ पर है? यहाँ पर है, तो ए। तो इस तरह से ये इसके सवाल के जवाब मिल गए। लिखना कैसे है यहाँ? तो आपको पर्चे में जवाब जो है कुछ इस तरह से लिखना होगा। जवाब में फहरिस्त ए गैस का अखराज, ई ऊपर तीर का निशान, आबी महलूल अक्वेस, सी हरारत का इस्तेमाल या मुसल्लस की निशानी, गैस की सूरत में जी। तो इस तरह से आप जोड़ियों को अपने पर्चे में लिखेंगे। अब आइए देखेंगे कीमियाई तामुलात और मसावात में जो है 1 मार्क्स के सवालात किस तरह से पूछे जाएंगे। ये तमाम सवाल सेंट्रलाइज हैं, आप अच्छे से देख लें। कीमियाई मसावत से क्या मुराद है? सवाल आया कीमियाई मसावत से क्या मुराद है? इसका जवाब क्या लिखेंगे हम? कीमियाई तामुल के अनासिर का इनकी तादाद के साथ अलामती इजहार कीमियाई मसावत कहलाता है। तो इसमें तमाम चीज़ें आ गई। कीमियाई तामुल आया, उसमें जो अनासिर मौजूद है उनकी तादाद के साथ जो जाहिर करने का तरीक़ा है वही क्या कहलाता है? कीमियाई मसावत कहलाता है। अब दूसरा सवाल, वसीत कैटलिस्ट से क्या मुराद है?
तो ये कैटलिस्ट क्या है? ये वो कीमियाई शय है जो कीमियाई तामुल को मुतासिर किए बगैर कीमियाई तामुल की शरह को बढ़ाने या घटाने में मदद करती है, वसीत कहलाती है। अजीज तलबा और तालिबात, मैं ये वसीत को जो है अक्सर अपने तलबा और तालिबात को इसकी मिसाल देता हूँ मदावत की। जो रिश्ते लाते हैं तो बगैर वो रिश्ता कायम किए क्या करते हैं, दो फैमिलीज़ के दरमियान रिश्ते को कायम करते हुए अपना काम करके फीस लेके चले जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही ये वसीत भी काम करता है। तो वसीत को याद रखने का एक बहुत अच्छा तरीका है, आप भी याद कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, दोहरा हटाव तामुल में क्या होता है? दोहरा हटाव तामुल, अल्फाज को आप देखें, दोहरा मतलब डबल, रिपीट, डबल, दोहरा। तो यहाँ पे दो का आवाज़ यानी दो की अहमियत है, तो उसे देखते हुए बता सकते हैं कि यहाँ पे कुछ दो लोग काम कर रहे हैं, दो अनासिर काम कर रहे हैं, दो आइटम काम कर रहे हैं। तो यही हम कहना है, दोहरा हटाव तामुल में दो मुख्तलिफ अनासिर यानी आइटम या अयानों का तबादला होता है। बस इतना काफ़ी होता है शॉर्ट आंसर टाइप का जवाब लिखने के लिए। अब मैं आपको मुख्तसरन अंदाज में लिखने वाले जवाबात या तफसीली, ये दोनों भी मैं आपको एक साथ बताने जा रहा हूँ, आप बगौर समाअत फरमाएं। मंदाज़ाइल सवालात के जवाबात लिखें। 2 और 3 मार्क्स के लिए कैसे रहेंगे? मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाने से पहले साफ करना होता है, क्यों? तो ये क्वेश्चन कई बार CBS एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है और इसकी अहमियत भी बहुत है। तलबा और तालिबात, आप इस बात का ध्यान रखें, आपको जो सवाल डिफिकल्ट लगते हो वो क्यों लगते हैं मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन जब आपके रोज़मर्रा ज़िंदगी के मुतल्लक सेट किया जाता है तो वही सवाल आपको तकलीफदा होता है। ऐसे सवाल तकलीफ देते हैं तो आपको लगता है ट्विस्ट किया गया है, घुमा फिरा कर पूछा गया है। यही बात होती है, उस मवाद को आप समझने के बाद अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहे हो या नहीं, इसकी भी जांच होती है। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाने से पहले साफ करना होता है, क्यों? तो यहाँ पे आपका रुझान देखते हैं कि मैग्नीशियम रिबन का आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हो। तो यहाँ पे होता ये है, मैग्नीशियम की धात को खुला रखने से वो हवा की ऑक्सीजन के साथ तामुल पाते हुए मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत अपने ऊपर जमा कर लेती है, दूसरी अंदर की धात को मजीद तकसीद पाने से रोक लेती है। तो इस तरह से हिफाजत भी हो गई किसकी? मैग्नीशियम धात की। तो जब उस धात का हम इस्तेमाल करना होता है तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ी हुई है। अब आप उससे पहले क्या कर लेंगे? अच्छे से साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद जो धात आपको नजर आ रही है, अब आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही जवाब आप अच्छे अंदाज में कैसे लिखेंगे? मैग्नीशियम एक तेज आमिल धात है जो हवा के ऑक्सीजन के साथ तामुल करके अपनी सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बनती है। इस तरह ये परत को मजीद तकसीद होने से रोकती है और धात की हिफाजत करती है। मैग्नीशियम रिबन को इस्तेमाल करने से पहले इसकी सतह को साफ कर लेना चाहिए। तो ये आपको 2 मार्क्स का जवाब हो गया। अब आइए फिर देखें, यहाँ पे एक सवाल है, मंदाज़ेल के लिए मुतवाज़न कीमियाई मसावत लिखें। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलने के बाद हाइड्रोजन क्लोराइड हासिल हो रहा है। तो इसको कैसे लिखेंगे? हाइड्रोजन का ज़ाब्ता आपको मालूम होना चाहिए, यानी H2। आप H नहीं लिख सकते, जिनको हम नेसेंट अनासिर कहते हैं उनका इस्तेमाल आप लोग नहीं कर सकते हो, सालिमों में इस्तेमाल करना होता है। इसीलिए हाइड्रोजन H2 कौन सी सूरत है, तभी हालत को जाहिर करेंगे, गैस। उसके बाद आता है क्लोरीन का इस्तेमाल होगा, जो कि गैस की सूरत में है। जब दोनों गैसों को दबाव के तहत मिलाया जाता है तो हमें और दूसरी गैस हाइड्रोजन क्लोराइड हासिल होती है। तो ये कीमियाई मसावत को आप लोग इस तरह से लिखोगे। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक तालिबे इल्म मार्बल चिप्स, एक तालिबे इल्म क्या करे? मार्बल चिप्स को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक तुलसी की इम्तिहान नली में डालता है तो खारिज होने वाली गैस को चूने के पानी में से गुजारा जाता है। तो वो क्या तब्दीली दिखाता है? दोनों को मुतवाज़िन कीमियाई मसावत से जाहिर कीजिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है मैं बताता हूँ। एक तालिबे इल्म ने मार्बल चिप्स लिए। आपको पता होना चाहिए मार्बल चिप्स जो है कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। वो
लेता है और उसके ऊपर क्या करता है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक तुषा डालता है। डालने के बाद गैस खारिज होती है। उस गैस को तालिब इल्म क्या कर रहा है, चूने के पानी में से गुजारता है। तो वहाँ पे क्या क्या अमल हो रहे हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले हम जवाब कैसे लिखेंगे ऐसे, तो जब तालिब इल्म मार्बल चिप्स को डाइल्यूट HCl की इम्तिहानी नली में डालता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है। इतना आपको मालूम है, आपने अल्फाज में लिखा, आप इसी को मसावात से जाहिर कर लो। कैल्शियम कार्बोनेट जो कि ठोस होता है, यस, और हाइड्रोक्लोरिक तुषार जो अक्वस होता है, इसके ऊपर डाल दिए तो हमें कैल्शियम क्लोराइड हासिल होगा, पानी हासिल होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होगी। अब तालिब इल्म क्या कर रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में से गुजार रहा है, जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं। तो क्या होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जो दूधिया नजर आता है। तो अक्सर आप लोग ये एक्टिविटी यानी सरगर्मी किए होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं बल्कि आपने लेकर फूंक मारी होगी, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है कैल्शियम कार्बोनेट में तब्दील हो जाता है जो दूधिया रंग का नजर आता है। तो उसके बाद देखेंगे नंबर 4, अमल तनफ्फुज एक हरारतज़ा तामुल है, बयान कीजिए, मसावत लिखेंगे। अजीज तलबा तालिबात, जो हम लोग सांस लेते रहते हैं तो ये एक कीमियाई तामुल है जो हमारे अंदर होता है, इसकी वजह से हरारत खारिज होती है। तो यहाँ पे हो रहा है क्या है, हरारत खारिज हो रही है, इसीलिए इसको हरारतज़ा तामुल कहते हैं। कैसे हो रहा है, ग्लूकोज यहाँ पर तब्दील होता है। कैसे हो रहा है मैं आपको जवाब बताता हूँ। अमल तनफ्फुस के दौरान हम ऑक्सीजन को सांस लेते वक्त अंदर दाखिल करते हैं, जो ग्लूकोज के साथ तामुल करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, ग्लूकोज जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन चली गई, तामुल हुआ, तामुल होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पानी बना, हरारत यहाँ पे खारिज हो रही है। चूंकि हरारत खारिज हो रही है इसीलिए एक हरारतज़ा तामुल है। तो आइए 4 मार्क्स के सवाल कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ। मंतज़र झेल सवालात के जवाब लिखो 4 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे आप लोग जो भी सरगर्मी किए होते हो उसी सरगर्मी का इस्तेमाल यहाँ पे क्वेश्चन को टेस्ट करते हुए उसकी जांच के लिए करते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, एक शुद्ध भूरे रंग की धात X को ऑक्सीजन की मौजूदगी में गर्म करने पर वो सियाह मरकब Y में तब्दील होता है जो असासी खुसूसियत रखता है। इसको जब हाइड्रोजन की मौजूदगी में गर्म किया जाता है तो वो X धात हासिल होती है। X और Y का नाम बताओ, कौन तकसीद और कौन तोही होता है बताएं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सवाल एक सरगर्मी के तहत पूछा गया है, तो जवाब भी उसी तरह से होना चाहिए। सबसे पहले आप इसको पकड़ लें, शुद्ध भूरा रंग, ये जो है तांबे का है यानी कॉपर का, तो ये निशानदेही कर रहा है कॉपर धात की, समझ में आ रहा है। तो ये रंग की वजह से हम पहचान सकते हैं धात को, या कोई ऐसी खास खुसूसियत का जिक्र होता है जिसकी वजह से उस धात की पहचान होती है। तो चलिए जवाब कैसे लिखेंगे। शुद्ध भूरे रंग की धात दरअसल तांबा यानी कॉपर है, जिसको ऑक्सीजन की मौजूदगी में गर्म करने पर कॉपर ऑक्साइड हासिल होता है। तो यहाँ पे कॉपर प्लस ऑक्सीजन, तो यहाँ पे बन गया हमारा कॉपर ऑक्साइड। ये पहले वाला जो X है वो है तांबा यानी कॉपर है, और जो सियाह मुरक्कब हासिल हो रहा है वो है कॉपर ऑक्साइड, जिसे हम Y से जाहिर करते हैं। तो इस तरह से हमें पता चला कि X जो है तांबा है, Y जो है कॉपर ऑक्साइड है। अब फिर वो बताता है कि X धात हासिल होगी दोबारा वापस, कब, हाइड्रोजन गैस खारिज होने के बाद। तो करना क्या है, कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन की मौजूदगी में दोबारा गर्म करने पर हमें तांबा हासिल होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, कॉपर ऑक्साइड को हमें हाइड्रोजन की मौजूदगी में गर्म करें तो हमें तांबा वापस मिल गया और साथ में पानी भी हासिल होता है। तो इस तरह से कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन को खोता है, इसलिए तोहीद होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉपर ऑक्साइड में मौजूद ऑक्सीजन हाइड्रोजन के पास चली जाती है, यानी ऑक्सीजन हाइड्रोजन के पास जाने की वजह से हाइड्रोजन तकसीद पा रहा है, और यहाँ से ऑक्सीजन निकलने की वजह से ये तहवील पा रहा है। तो इस तरह से हमें समझ में आया
कि ऑक्सीजन यहाँ से हाइड्रोजन के पास चली जा रही है। तो अजीज तलबा और तालिबात, अब आप देखें कि किस तरह से सवालात तैयार किए जाते हैं। ये सेंट्रलाइज क्वेश्चंस हैं, इस तरह से सवालात तैयार होते हैं। तो मेरा यही कहना है कि आप जब भी पढ़ो, मवाद को अच्छी तरह से पढ़ो, समझ के पढ़ो। आपने एक कहावत सुनी होगी, रीड इन बिटवीन द लाइन्स, रीड इन बिटवीन द लाइन्स। जब मैंने तालिब इल्म को पूछा कि रीड इन द बिटवीन लाइन्स का तशरीह करो, मानी बताओ, तो बताने लगा कि 2 लाइन के दरमियान पढ़ना है। तो आपको मैं यही बताऊंगा कि 2 लाइन के दरमियान पढ़ने का मतलब यह है बगौर पढ़ो, बगौर समाप्त करो, उसे पढ़कर समझो। तो इसी तरह से आपको मवाद को पढ़कर समझना है। अब मैंने यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हो। इस चार्ट को में पूरा चैप्टर, कौन सा, कीमिया तामुल और मसावतें, पूरे चैप्टर को मैंने कंसाइज करके, छोटा करके, याददाश्त के लिए, जिसे हम माइंड मैप भी कह सकते हैं, आप इसे ले सकते हो। तो यहाँ पे देखें कीमिया तामुलात और मसावतें, यहाँ से हमने कीमिया तामुलात को अलग कर लिया है। फिर पहली मिसाल इत्तेहादी तामुल, जिसमें 2 मुतामिल होते हैं, जुड़ने के बाद तीसरा जो हासिल होता है वो है महासिल। तो A + B गिव्स C, उसकी मिसाल भी यहाँ पे मैंने लिखी है। सोडियम + क्लोरीन, तो हमें मिलता है सोडियम क्लोराइड। तो इतना देखने के बाद हमें इत्तेहाद तामुल का डेफिनेशन, उसकी मिसाल ये मिल जाती है। इसी तरह से आप यहाँ पे तहलीली तामुल में देख सकते हैं, जिसमें एक मुतामिल 2 महासिल में तब्दील होता है, यानी A डिवाइडेड इंटू B एंड C। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, तो अकमल की आपने मिसाल देखी, अकमल ने क्या किया था, चूने के पत्थर को गर्म किया था, जिसकी वजह से वो 2 महासिल दिया था, जिसकी वजह से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड हासिल हुए थे। तो अजीज तलबा और तालिबात, इस तरह का चार्ट आपको बहुत मदद करेगा आपकी पढ़ाई में। तो तीसरा मिसाल है हटाओ तामुल। तो हटाओ तामुल आप यहाँ देख सकते हो, ये B + C, यानी एक मुरक्कब है जिसमें 2 अनासिर हैं, और तीसरा जो है एक अंसर है या मुरक्कब है। एक अंसर दूसरे मुरक्कब के अंसर को हटाते हुए यहाँ पे उसकी जगह ले लेता है, इसी को हम हटाओ तामुल कहते हैं। अगर 2 अनासिर अपनी जगह अदल बदल कर रहे हैं 2 मुरक्कबात में, हम उसे दोहरा हटाओ कहते हैं।